Jai Hind, good morning everybody. I, Dr. Nishant Kumar Pathak, Associate Professor, Computer Science Engineering Department, AKGEC. Now, today's lecture is digital marketing. What is digital marketing? What is internet? And what is the use of digital marketing in present scenarios? This is the very important topic. And nowadays, you have seen the evolution of the marketing. So, the digital marketing plays the very vital role. If I am talking about the traditional marketing system, when digital marketing introduced, changed the world scenarios. Anybody, any places, he want or she want to start the new things, selling or buying. So with the help of digital marketing process, it's very easy to sold out, to buy the things, to know the concept of the digital marketing in present scenarios is very important. There are certain learning objectives when you have completed the digital marketing things, and when I covered this lecture, then what's you learn? After that reading this chapter, you will be able to understand what e-marketing is and how the marketing world is changed. After reading this chapter, you will be able to, what's you learn? Understand what e-marketing is and how the marketing world is changing. Second, learn about the technology that support the e-marketing and how they help. The third one, understand the ideas behind how people behave on the internet. See how different type of online marketing are different from each other. Learn how to improve the digital marketing plan of action and understand how digital changes affect the marketing. This is the learning objective. After the completion of this lecture, you understand all these concepts that have been mentioned in slides. Now, what is e-marketing? Everybody know about the traditional marketing. And the modern terminology, the e-marketing plays a very vital role to grow the economic system. And its affect the social impacts also. So the e-marketing is what? Explore the new tools offered by the world of the internet. Explore the domain of the social media also. Social media, just Instagram, Facebook, and there are a number of social medias in present scenarios. And in this time, when you have exploring the social media sites, you have easily watch the different type of content and different type of videos that having only shows the value of the product and what the product is. Some having, so we are joined and they are selling the product with the help of the social media sites. And the third one is investigate the mindset of the individual ventures present in online. Third, investigating the characteristics of the virtual medium which can be values to the end customer, and the identifier how the companies can be advantage the worldwide, online worldwide as a media for brand communication, for building the brand and the stakeholder relationship and the customer relationship of the management. Understand the consumer online experiences and examining the traffic building activities of the markets. And now I just give a certain example.
In the software engineering, one terminology is used when you start any project, and the terminology is known as the feasibility study. What is the feasibility study? Means if you want to introduce any product in market, then the first thing is know about the mindset of the customer, what the customer wants, what they want. Means the feasibility study helps to know about the mind setup of the customer, the consumer, that have been the consume my things when I introduce my things in the market. पहली टर्मिनोलॉजी जो हम लोग यूज करते हैं वो होता है फिजिबिलिटी स्टडी, एंड विद द हेल्प ऑफ द फिजिबिलिटी स्टडी हम मार्केट के उन चीजों के ऊपर स्टडीज करते हैं जिसमें कि हम कंज्यूमर के, कस्टमर के माइंड सेटअप को पढ़ने का काम करते हैं। जब हम कस्टमर और कंज्यूमर के माइंड सेटअप को जान जाते हैं, उनकी नीड को जानते हैं, तो हम उतना ही अच्छा प्रोडक्ट हम मार्केट में बनाकर कंज्यूमर को ऑफर्ड कर सकते हैं कि आप हमारे इस प्रोडक्ट को बाय करिए और बाय करने के बाद यूज करिए और फीडबैक दीजिए। ई मार्केटिंग सिस्टम में सबसे अच्छी बात क्या हुआ, सबसे जो अच्छा चीज हुआ, हम डिफरेंट डोमेन सोशल मीडिया साइट्स को मोस्टली जो यंगस्टर्स हैं वो यूज करते हैं, और जो बेचने वाले हैं, जो वेंडर्स हैं, उनके लिए यूथ टारगेट और जिस तरह का प्रोडक्ट है उस तरह का टारगेट ऑडियंस इकट्ठा करना और उन तक अपनी बातों को पहुंचाना बड़ा आसान हो गया, क्योंकि वहां पर फिल्टरिंग थिंग्स अवेलेबल है। और फिल्टरिंग थिंग्स से क्या हो रहा है, वो फिल्टर आउट कर रहे हैं कि हम अपने प्रोडक्ट, जो हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जो प्रोडक्ट हमने बनाया है, वो किस एज ग्रुप का है, और हम उसी एज ग्रुप के पास अपने मैसेज को क्या कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं, अपने मैसेज को हम भेज रहे हैं। तो एक्सप्लोर द न्यू टूल्स ऑफर्ड बाय द वर्ल्ड ऑफ द इंटरनेट। अब हमें सबके पास सारे प्रोडक्ट्स को ले जाने की जरूरत नहीं है। अब हम इंटरनेट के थ्रू हम उन्हीं चीजों को वहां तक लेकर जाएंगे जहां पर कि उन चीजों की उनको जरूरत है, बाकी चीजों को हम छोड़ देंगे, बाकी लोगों को हम छोड़ देंगे। हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं इजीली मैनर में कि किनको किन चीजों की जरूरत है और कितने लोग इन चीजों को यूज कर पाएंगे। ये जो वर्चुअल मीडियम है, ये एक परफेक्ट मीडियम है किसके पास इंटरेक्ट करने का। इज अ वेरी वेरी परफेक्ट मीडियम टू इंटरेक्ट विद द ऑडियंस, interact with the consumer to sort out the product, branding the product, promotion the product, and convince the consumer or the customer, buy my product. So the e-marketing is what? E-marketing is the tool, and this tool, with the help of this tool, we easily circulate the masses with the help of the World Wide Web, with the help of the www, with the help of the internet. Now, e-marketing and information technology. The e-marketing is the use of the information technology in the process of the creating, communicating, delivering the value of the customer, and for managing the customer relationship in the way that benefit the organization and its stakeholders. E-marketing is the result of the information technology applied to the traditional marketing. E-marketing is the result of information technology applied to the traditional marketing. पहले ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम जबरदस्त तरीके से ग्रो किया। लोग जाते थे, बाय करते थे, अपना लोगों के पास समय नहीं भी होता था, तब भी उन्हें अपने प्रोडक्ट को बाय करने के लिए समय निकालना पड़ता था, जाना पड़ता था, घूमना पड़ता था, समय के साथ उनको ढूंढना पड़ता था। लेकिन अब उनको जाने की जरूरत नहीं है, उनके पास मोबाइल है, उनके पास वो सारे सिस्टम्स अवेलेबल है। विद द हेल्प ऑफ दो सिस्टम वो उन चीजों को इजीली क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। और ये एक ऐसी फैसिलिटी है जहां पर कि आप कम समय में
ज्यादा रिसोर्सेस को का यूटिलाइजेशन क्या कर सकते हैं, इजिली कर सकते हैं. सो द marketing and information technologies plays a very vital role in the present scenarios. And with the help of e-marketing is the result of the information technology applied to the traditional marketing. And the e-marketing is the use for the technology in the process of creating and communicating and delivering the value of the customers and managing the customer relationship in the way that benefit the organization and stakeholders. Now, the changing marketing landscapes. Evolution of the internet. जब इंटरनेट का एवोल्यूशन हुआ, इंटरनेट आया, तो इंटरनेट आने के बाद चीजें काफी बदली. जो चीजें पहले ट्रेडिशनल वे में चलता था, जो चीजें पहले ट्रेडिशनल टाइप से बिकता था, अब उस चीजों को क्या किया गया, उन्हीं चीजों को मार्केट में ऑनलाइन के थ्रू लेकर आया गया. और जब ऑनलाइन के थ्रू लेकर आया गया तो उसके लिए एक नए नियम बने और नए नियम के साथ उसको बेचने का कुछ नया तरीका बना. और उन तरीकों के साथ क्या हुआ, जब प्रोडक्ट्स मार्केट्स में आए तो लोगों ने देखा कि भाई हमें क्या फायदा हो रहा है. हम ट्रेडिशनल मार्केट्स में जा रहे हैं तो हमें रिक्वेस्ट करना पड़ा है कि 2 रुपए कम करिए, 5 रुपए कम करिए, 10 रुपए कम करिए, $1 कम करिए, $2 कम करिए. लेकिन हमारे पास जब विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट और जब हमारे पास ई मार्केटिंग कॉन्टेंट्स आया तो हमें बैगिंग करने की जरूरत नहीं है. हमारे पास नंबर ऑफ साइट्स हैं, नंबर ऑफ थिंग्स अवेलेबल्स हैं. हमें ढूंढना है, थोड़ा समय लगाएंगे, हम चीजों को ढूंढेंगे और हमें समय समय पर उस प्रोडक्ट के ऊपर जो हमें चाहिए, जितना परसेंट का हमें छूट चाहिए, वो वहां हमें क्या हो जाता है, दिख जाता है. तो एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट के बाद जो एक नया सिस्टम बना, उस सिस्टम के हेल्प से चीजों के जो सामान बेचने का तरीका था, जो सामान खरीदने का तरीका था और जो माइंड सेटअप था कंज्यूमर का, वो माइंड सेटअप भी धीरे धीरे क्या होने लगा, बदलने लगा. अब जब चीजें बिकी, चीजें जब आई मार्केट्स में, तो एक सबसे बढ़िया ये चीज हुआ ऑनलाइन चीजों से कि हम मार्केट ग्राफ्स और कस्टमर्स के माइंड सेटअप को हम इजिली एसेस कर पा रहे थे. हम उनके माइंड सेटअप को समझने की कोशिश इजिली कर ले रहे थे कि आखिर किस चीजों का पसंद किस टाइप के कंज्यूमर को कितना है. तो ये हमारे लिए एक बड़ा आसान तरीका हुआ. जब इंटरनेट मार्केटिंग इंट्रोड्यूस हुआ तो हमारे सामने एक मैट्रिक्स भी जनरेट हो गया और उस मैट्रिक्स के हेल्प से हमें ये पता लग पाया कि कितना सामान हमें मार्केट में भेजना है, कितना सामान, किस सामान को किस टारगेट ऑडियंस के पास हमें टारगेट करना. और विद द हेल्प ऑफ दोस टारगेट ऑडियंस हम उन चीजों को बेचने का काम कर रहे हैं, उनसे समझने का काम करते हैं, उनके माइंड सेटअप्स को रीड करने का काम करते हैं और फिर जो बनाने वाले लोग हैं उसी हिसाब से प्रोडक्शन करते हैं और फिर एडवर्टाइज करके और कंज्यूमर तक अपने सामान को पहुंचाने की जिम्मेदारी लेते हैं और पहुंचाते भी हैं. इसी तरह बिग डेटाज हैं. बिग डेटाज में अभी हम आगे देखेंगे कि किस तरह से बिग डेटा अपना रोल प्ले कर रहा है, वायरलेस नेटवर्क कैसे रोल प्ले करता है कि हमारे मार्केटिंग लैंडस्केप्स में वेब 2.0 का क्या रोल है, ई कॉमर्स क्या है, इन्फ्लुएंस मार्केटिंग क्या है, ये सब अभी हम आगे वाले स्लाइड्स में देखेंगे. Now the era of big data. In era of big data, extract transformations, learn customer intelligence, forecasting trends, customer analytics, extract the consumer DNA. अभी के समय में in the modern time, it's very important to know about the mindset of the consumer, the customer. कंपनी के पास जो सबसे बड़ा रोल है वो ये है कि कस्टमर का माइंड सेटअप रीड करना. अगर कस्टमर के माइंड सेटअप को रीड करने में कंपनी जीत हासिल कर लेती है, कंपनी इस बात को समझ लेती है कि किस तरह से अपने प्रोडक्ट को किस
बिहेव में कस्टमर तक पहुंचाया जाए, किस तरह से पहुंचाया जाए, अगर इस चीज़ को वो आसानी से समझ लेती है तो सामान बेचने में कंपनी को उतना एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, इंफॉर्मेशंस जो एक्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे, उसके बाद उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। ये चीज़ समझना पड़ेगा कि हमारे पास जो ऑडियंस हैं उनको क्या पसंद है, किस तरह की चीज़ें पसंद है, किस तरह से उनके पास उसको प्रेजेंट किया जाए और उसमें क्या-क्या चीज़ जो है, क्या-क्या क्वालिटी होनी चाहिए। जब ये सारी चीज़ें हमें पता चलेगी तभी हम ई-मार्केटिंग को और अच्छा और बेहतर बना पाएंगे। नाउ वेब 2.0 क्या रोल प्ले कर रहा है? विद द हेल्प इन प्रेजेंट टाइम हम ये देखते हैं कि देयर आर नंबर ऑफ सोशल मीडिया साइट्स अवेलेबल एंड ये सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट की बात करता है कि हम आपको एसेस फ्री ऑफ कॉस्ट करने दे रहे हैं, आप इनको यूज करें। और बैक एंड पर हमारे डेटाबेस के हेल्प से, हमारे डेटा के हेल्प से जो हम वहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस, जो हम अपना एज, जो हम अपना जेंडर, जो भी चीज़ हम उस फॉर्म में फिल करते हैं, उसके हेल्प से हमारे डेटा के ऊपर काम होता है और डेटा के ऊपर वर्कआउट करने के बाद वही चीज़ें जो हमें पसंद है उस चीज़ों को रिफ्लेक्ट कराई जाती है बार 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 बार। और कस्टमर, कंज्यूमर, हम जैसे लोगों के लिए वो चीज़ें, जब हम किसी चीज़ों को बार बार देख रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में एक सेटअप बनता है कि नहीं भाई, अब हम इस चीज़ों की तरफ जाएं, जरा एक बार खरीद के देखें। और इसमें जो सबसे बड़ा जो अभी रोल प्ले हो रहा है, जो काम कर रहा है अभी वेब 2.0 में, उसमें यूट्यूब एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। यूट्यूब में नंबर ऑफ कंटेंट अवेलेबल है, नंबर ऑफ वीडियोस अवेलेबल है। अब जब भी हम यूट्यूब चला रहे हैं, वीडियोस देख रहे होते हैं, तब हम क्या देखते हैं? कुछ समय के बाद उसमें एडवर्टीजमेंट आना शुरू हो जाता है, प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, स्टडी के रिगार्डिंग्स, एंड देयर आर नंबर ऑफ एड्स। ये जो ऐड हैं, और फिर इस ऐड के नीचे आप जब ऐड आता है तो उसको जब हम क्लिक करते हैं तो उस प्रोडक्ट, जहाँ प्रोडक्ट पड़ा है, चाहे वो अमेज़न पे हो, फ्लिपकार्ट पे हो या कुछ ऐसे वेबसाइट्स हैं या मंत्रा पे हो, तो वहाँ पर हमें डायरेक्ट हमारी एक्सेसिबिलिटी चली जाती है और वहाँ पर प्रोडक्ट जो है, वहाँ पर प्रोडक्ट हमें शो होने शुरू हो जाते हैं। तो यूट्यूब जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है इस समय प्रोडक्ट को क्या करने के लिए, किस तरह से हम सोल्ड आउट करें, किस तरह से हम कंज्यूमर तक पहुंचाएं। अब ब्लॉगिंग्स है, कई लोग ब्लॉगिंग्स करते हैं, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शंस डालते हैं, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स के बारे में बताते हैं। अलग अलग टाइप के ब्लॉगर्स हैं, कुछ ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं, कुछ ब्रांड प्रमोशन ब्लॉगर्स हैं, कुछ हेल्थ के रिगार्डिंग्स लिखते हैं, बोलते हैं। तो अब ये विद द हेल्प ऑफ ब्लॉगिंग्स हमारे को एक नया मार्केट मिला, एक नई चीजें मिली, जिसके थ्रू हम चीज़ों के डिस्क्रिप्शंस को पढ़ते हैं, उससे होने वाले बेनिफिट्स के बारे में समझते हैं, उससे होने वाले जो परेशानियां हैं उनको भी हम लोग एनालाइज करते हैं, और फिर अगर माइंड सेटअप तैयार होता है तो हम प्रोडक्ट को क्या करते हैं, बाय करते हैं। तो एक तरफ हम वीडियो को देख रहे हैं, एक तरफ विद द हेल्प ऑफ ब्लॉगिंग मतलब राइटिंग स्किल्स, राइटिंग्स के हेल्प से चीज़ों को देख रहे हैं, और प्रोडक्ट्स के को बाय करना है या नहीं करना है उसके लिए हम तैयार हो रहे हैं। ऑनलाइन कम्युनिटीज मतलब एक तरह के माइंड सेटअप के लोगों के साथ वर्कआउट करना, एक तरह के माइंड सेटअप के लोगों के साथ। तो एक तरह के माइंड सेटअप के लोग एक तरह की कम्युनिटीज को, उस तरह की कम्युनिटीज को ज्वाइन करते हैं। सपोज मुझे किताब पढ़ना अच्छा लगता है, तो मैं बुक्स रीडिंग जो कम्युनिटी है, बुक रीडर कम्युनिटी जो है, जो बुक पढ़ना पसंद करती है, मैं वैसे कम्युनिटीज को ज्वाइन करूंगा। अब वहां पर कोई नई किताबें आती है तो मैं अगर मैंने पढ़ी है तो मैं उसके बारे में रिव्यू डालता हूँ, किसी और ने पढ़ी है तो वो रिव्यू डालते हैं, या किसी को कोई ब्यूटी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के बारे में कम्युनिटी ज्वाइन करते हैं, उनको उनके बारे में रिफ्लेक्शंस करता है, उनके बारे में जानकारी देनी है, तो उनके लिए अपनी एक कम्युनिटी उन्होंने बनाई है। तो विद द हेल्प ऑफ कम्युनिटी, ऑनलाइन कम्युनिटी भी बहुत ज़्यादा काम चल रहा है।
ई मार्केटिंग को प्रमोट करने का, सामान को बेचने का और वहां से सामान को खरीदने का। नाउ विकीज है हमारे पास, हम आर्टिकल्स लिखते हैं, विकीलिक्स विकीपीडियाज पे लिखते हैं और वहाँ पर देखते भी हैं कि कई सारी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन और चीज़ें अवेलेबल होती है, तो हम वहाँ पर भी इसके साथ ई मार्केटिंग करते हैं और कर रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में। और फेसबुक पेजेस भी है, अपने अपने पेजेस बनाते हैं, अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग पेजेस बनाते हैं, अपने भी रिगार्डिंग प्रोडक्ट, अपने भी रिगार्डिंग हम लोग अपनी चीज़ों को लिखते हैं फेसबुक पेजेस में। और अपने अपने आप को एडवर्टाइज करने की जरूरत है। अगर हमारे पास समथिंग, कुछ भी प्रोडक्ट्स अगर हमारे पास और हम चाहते हैं उस प्रोडक्ट को हम मार्केट में लेकर आए, तब भी हम क्या करते हैं, फेसबुक का यूज करते हैं। साथ में हमारे पास ट्विटर भी है, जहां हम ट्वीट के माध्यम से चीजों को देखते हैं, समझते हैं और फिर अगर हमें बाय करना है तो हम उस चीजों को बाय करते हैं, या सोल्ड आउट करना है तो हम सोल्ड आउट करते हैं। आजकल एक बहुत अच्छा एक नया कॉन्सेप्ट आया है जिसमें हम चीजों को ब्रॉडकास्ट करते हैं। अब इसमें इंटरव्यूअर इंटरव्यू लेता है और दूसरा आदमी उसके बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने भी जीवन के बारे में चीज़ों को बताता है। और कई बार चीज़ें निकलती कि भाई आप इतना अच्छा बोलना कैसे सीखे, या आप और चीज़ें आपने कैसे सीखा। तो विद द हेल्प ऑफ द पॉडकास्ट वो प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने का काम कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को वो बेचने का काम कर रहे हैं। तो ये जो है वेब 2.0 क्या क्या लेकर आया हमारे सामने, यूट्यूब लेकर आया, ब्लॉग्स लाया, ऑनलाइन कम्युनिटी, विकीज लेकर आया, फेसबुक पेजेस, ट्विटर, पॉडकास्ट। तो ये सब चीज़ें हमारे सामने एक एडवांटेज के रूप में वेब 2.0 में हमने ई मार्केटिंग के लिए इन सब टूल्स को यूज़ किया। अब हमारे पास जो है वो नेक्स्ट आता है वेब बेस्ड एप्लीकेशन। अब ये वेब बेस्ड एप्लीकेशंस कैसे काम करता है ई मार्केटिंग में, टैलेंट एक्विजिशंस, मार्केट रिसर्च, वेब बेस्ड एप्लीकेशन, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड प्रोडक्ट डेफिनेशंस। मार्केट रिसर्च, एक साथ दो फोन एक टाइम पर सबसे पहले एक रिलायंस का फोन आया जिस फोन का वेट सपोज 1 पॉइंट सम केजी था। इधर चाइना वाले ने रिसर्च आउट किया कि आखिर क्या कारण है कि ये जो 1 पॉइंट सम केजी का जो रिलायंस का फ़ोन है वो मार्केट में इतना ज़्यादा फैल नहीं पा रहा है, इतना ज़्यादा लोगों तक नहीं जा पा रहा है, इसका रीज़न क्या है। तो मार्केट रिसर्च से हमें ये पता चला कि जो मैक्सिमम हमारी जो आबादी है, जो मैक्सिमम जनसंख्या है, वो क्या पसंद करती है। उनको एंटरटेनमेंट्स के लिए सॉन्ग सुनना है। वहाँ पर एक सिम लगी हुई है, अगर 2 सिम होंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उनको ये फैसिलिटीज़ भी चाहिए थी। कम्पैक्ट मोबाइल चाहिए था, मोबाइल साइज़ भी छोटा चाहिए था, जबकि रिलायंस में ऐसी बातें नहीं थी। उस समय उसका साइज़ भी क्या था, ज़्यादा बड़ा था और वज़न भी ज़्यादा था। तो मार्केट रिसर्च में ये सब चीज़ों का पता चला। उसके बाद चाइना ने मार्केट रिसर्च करके 2 स्पीकर्स वाले फ़ोन को उन्होंने लॉन्च किया, जिसमें 2 ड्यूअल सिम्स लगे होते थे और वेट को रिड्यूस किया, साइज़ साथ में जो साइज़ था उसको भी कॉम्पैक्ट किया उसने। तो इस तरह से एक समय था जबकि मोबाइल के दुनिया में, इंडिया में चाइना के मोबाइल का सबसे ज़्यादा बोलबाला था। तो द मार्केट रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इफ यू इंट्रोड्यूस एनीथिंग इन द मार्केट, फर्स्टली व्हाट्स यू डू, मार्केट रिसर्च। नेट मार्केटिंग में भी ऐसा ही था, इंटरनेट मार्केटिंग में भी सेम यही चीज़ था कि सबसे पहले जिस चीज़ पर रिसर्च किया गया वो था हमारे पास मार्केट रिसर्च। मतलब इंटरनेट मार्केटिंग में जो किया गया सबसे पहला चीज़ क्या था, कंज्यूमर और कस्टमर माइंड सेटअप रिसर्च। जब ये चीज़ हुआ उसके बाद ही एप्लीकेशंस बनाए गए और फिर मार्केट तक उन चीज़ों को क्या किया गया, भेजा गया। इट मीन्स वेब बेस्ड एप्लीकेशंस के लिए टैलेंट एक्विजिशंस और प्रोडक्ट डेफिनेशन दोनों बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर इन चीज़ों के बारे में बात करें और अगर हम अपने प्रोडक्ट की डिलीवरी की बात करें, किससे, ट्रेडिशनल मार्केटिंग से और इंटरनेट मार्केटिंग में, तो हम देखेंगे कि इंटरनेट मार्केटिंग सिस्टम में, ई मार्केटिंग सिस्टम में सबसे ज़्यादा रिसर्च पॉसिबिलिटी और इजी रिसर्च पॉसिबिलिटी क्या है, संभव है।
इसके कारण से ही इन प्रेजेंट सिनेरियोज जो हमारा वेब बेस्ड एप्लीकेशंस है, जो मार्केट की थिंग्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रहे हैं, मार्केट्स में आए और अभी वो चल रहे हैं। तो जय हिंद। नेक्स्ट लेक्चर हम इसके आगे की ओर पढ़ेंगे और चीज़ों को समझेंगे।